Hello students, in this lecture we are starting AS10 which is property, plant and equipment. Basically PPE, these are called fixed assets. So let us see what is this standard. So this AS10 prescribes accounting treatment for PPE which are held as assets for business purpose. So what are major topics of AS10? First of all, we will discuss meaning and types of PPE. Then we will see recognition of PPE at a cost. Then it is a remeasurement of PPE. Then it is a depreciation on PPE. Finally, we will discuss re-recognition of PPE. It means when asset is sold and disclosures for PPE. So number one, we are starting meaning and types of PPE. PPE means which are our assets which are held for business purpose. So PPE are tangible assets which are expected to be used for more than 12 months and held for use in production or supply of goods or services और held for rentals to others. It means ये assets हैं जो आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स या फिर आप उनको रेंट पे दे रहे हैं और हेल्प फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज. एडमिनिस्ट्रेशन में सभी टाइप के बिजनेस पर्पज आते हैं. So administrative purposes include selling and distribution, finance and accounting, personal and safety or environmental functions of an enterprise. Enterprise is also called entity. It means PPE are assets that generate future economic benefits by itself or they enable an enterprise to derive benefits from related assets. तो पीपीई के थ्रू हमें बेनिफिट्स मिलते हैं या ये हेल्प करते हैं टू जनरेट बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल अ न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट बिकॉज विदाउट इट एन एंटरप्राइज इज अनेबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल केमिकल्स. तो इट मीन जैसे केमिकल प्लांट है वो हमें हेल्प करता है टू मैन्युफैक्चर एंड सेल केमिकल्स. तो इट मीन दिस इज आल्सो अवर पीपीई. तो PPE is recognized into different classes. तो PPE को हम PPE मीन्स एसेट्स जो भी हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारी. तो अपने क्लास उसको कहते हैं डिफरेंट क्लासेज. अ क्लास ऑफ PPE इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज इन ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज. तो जो सिमिलर टाइप के एसेट्स होती हैं उनकी हम एक कैटेगरी बना देते हैं विच इज कॉल्ड क्लास ऑफ PPE. उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं. Examples of separate classes of PPE are land, which is pure land. Then land and buildings, machinery, motor vehicles, ships, aircrafts, office equipment. ऑफिस इक्विपमेंट में जैसे कंप्यूटर्स हैं, आपके प्रिंटर्स हैं. देन फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड बायोलॉजिकल एसेट्स हैं एंड बियरर प्लांट्स. तो मेन जो नई टर्म्स आपको लगेंगे इसमें बायोलॉजिकल एसेट एंड बियरर प्लांट्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं. रिमेनिंग आइटम्स आपकी नॉर्मल हैं. So what are biological assets? These are livestock, means living animals which are being used to produce harvested product. तो जैसे काउ है उसके थ्रू आपको मिलते हैं मिल्क. तो दिस इज आल्सो अवर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टेड प्रोडक्ट. सो दीज आर कवर्ड बाय AS10 until a new accounting standard on agriculture is issued by ICAI. तो प्रेजेंटली जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं वो भी हमारी AS10 में कवर हो रही हैं. So again let us see what is bearer plant. Meaning of bearer plants. So bearer plant is a plant which satisfy all the three conditions. जैसे आप कोई भी ट्री कल्टीवेट करते हैं तो उसके थ्रू आपको जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड बेयरर प्लांट. इसमें तीन कंडीशंस हैं. इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. जैसे मैंगो ट्री है उसके थ्रू आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलेगा. And used to bear agricultural produce for more than 12 months and sold as scrap for use as firewood by cutting down when plants are no longer used to bear produce. तो फाइनली जब उस ट्री की कोई यूज नहीं रहेगा उसको हम कट डाउन कर देते हैं एंड इट इज यूज्ड एज ए फायरवुड. Then let us see what items are not included in PPE as per AS10, जिसके लिए आपके पास अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. The following assets are not included in PPE as per AS10. तो नंबर वन आती हैं इन्वेस्टमेंट्स. जब आप करते हैं इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक इक्विटी और डेट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट
So these are valued at cost as per AS 13. तो ये AS 13 में कवर होती हैं और उसको वैल्यू करके हम कॉस्ट के ऊपर। सेकंड आती हैं लीज एसेट्स हैं विच आर वैल्यूड एट पर AS 19। नंबर थर्ड ये इंटेंजिबल एसेट्स विच आर वैल्यूड एट पर AS 26। इट मीन्स AS 10 में हम कवर कर रहे हैं ओनली टेंजिबल एसेट्स विच इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स और PPE। तो इंटेंजिबल एसेट्स आपकी कवर होंगे AS 26 में। फोर्थ की वेस्टिंग एसेट्स हैं सच एज मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो फिफ्थ की प्लांट्स बीइंग नॉट बियरर प्लांट्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जो बियरर प्लांट नहीं हैं तो वो आपका जो है PPE में कवर नहीं होगा। मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही मानते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो लाइक नंबर ए प्लांट्स कल्टिवेटेड को भी हार्वेस्टेड है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इट मीन ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर ओनली फॉर वुड पर्पज के लिए किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस हार्वेस्ट एंड सेल द प्लांट एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इट मीन्स ट्रीज कल्टिवेटेड बोथ फॉर गेट फ्रूट एंड लंबर। इसमें पर्पज यही है कि बस सिर्फ आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल जाएगा या फिर इसको एज ए वुड इसकी लंबर हम यूज करेंगे। So third is our animal crops like maize and wheat. So it means these are not bearer plants and therefore they are not covered by AS 10. So next let us see recognition of PPE at cost. So we know that the items of PPE are recognized as asset if cost can be measured reliably and it is probable that PPE will provide future economic benefits to the entity. इट मीन्स ऐसे होती है जिसकी कॉस्ट हम डिटर्मिन कर सकते हैं और उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स जनरेट होंगे। सो PPE मे बी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इटसेल्फ बाय एन एंटिटी और मे बी एक्वायर्ड इन कैश और इन एक्सचेंज ऑफर। कोई एसेट को आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या फिर आप रेडीमेड परचेज कर सकते हैं फ्रॉम मार्केट। It means costs incurred on PPE may be initial costs or subsequent costs। और इसमें दो तरह के एक्सपेंसिव होते हैं। इनिशियल हैं जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जब आप उसको परचेज कर रहे हैं या फर्दर आपने एक्सपेंसिव करने हैं विच आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट कोस्ट्स। सो इनिशियल कोस्ट्स आर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ PPE विच आर कैपिटलाइज्ड एज कॉस्ट ऑफ एसेट while subsequent costs are incurred for performance and improvement of PPE। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट हैं हमारी। नंबर वन है जो कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट और एसेट विच इज एक्वायर्ड बाय कैश। तो इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ PPE में हमारी जो आइटम्स इंक्लूड होंगी दीज आर नंबर वन परचेज कॉस्ट हैं प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसिव हैं आपके प्लस इंटरेस्ट की कॉस्ट्स हैं प्लस कॉस्ट ऑफ डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़। ये होती हैं कि आपने जब एसेट को टर्मिनेट करना है उस टाइम इसको रिस्टोर करने की जो कॉस्ट आएगी वो भी हम कंसीडर करते हैं। एंड माइनस इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ PPE। तो नंबर वन है ये परचेज कॉस्ट। इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस ऑफ एसेट और मटेरियल। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सेल तो उसमें मटेरियल आ जाएगा। रेडीमेड परचेज कर रहे हैं तो वो सीधा एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। प्लस कोई आपकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं या कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेज हैं जैसे GST या जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा वो आपने ऐड कर देने हैं माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। फिर आती हैं आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। So these expenses include like freight, transportation, initial delivery and handling costs। Delivery और handling में आती है loading, unloading, then plus employee benefit costs जो भी employees हमारी related होती हैं for construction of PPE उनकी जो salaries हैं remuneration हैं। then site preparation costs, installation and assembly costs, professional fees जो architects हैं engineers प्लस टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल कोस्ट्स। जब आप टेस्ट करते हैं PPE की फंक्शनिंग के लिए उसके जो भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं और उस टाइम जो कुछ हम सैंपल प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है वो लेस कर दीजिए। सो लेट्स नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल्स प्रोड्यूस्ड वाइल टेस्टिंग। तो ये सारी आपकी बन जाएंगी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोस्ट्स।
फिर आती है आपकी नंबर सी है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट हैं। इट मीन्स फाइनेंसिंग एंड बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16 विच आर इनकल्ड ऑन या एसेट अप टू द पीरियड सच एसेट की रेडी की यूज। आपने कोई लोन लिया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट कि जब तक एसेट आपकी रेडी नहीं होगी यूज के लिए अप टू दैट टाइम इंटरेस्ट विद कैपिटल आएगी। कई बार होता है कि आप पेमेंट लेट करते हैं, जैसे नॉर्मल क्रेडिट आपको 1 मंथ का मिल रहा है पर आपने पेमेंट करी 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 1 ईयर में, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा पेमेंट में और परचेज प्राइस में वो भी हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट मानी जाएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर डेफर्ड पेमेंट इज डिफरेंट बिटवीन टोटल पेमेंट एंड कैश प्राइस। देखिए अब आज ही पेमेंट करते हैं तो वो हमारा कैश प्राइस है, पर आप पेमेंट डिले कर रहे हैं तो यदि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं दैट इज आवर इंटरेस्ट। So if a credit period is more than 1 year, then the annual interest cost is recognized by applying implicit interest rate, जिसको हम IRR कहते हैं कैपिटल बजटिंग में, जो फाइनेंस में करते हैं। देखिए आपका 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो फिर आपने IRR कैलकुलेट करना है, उसके बेस पर हम इंटरेस्ट कॉस्ट अप्लाई करते हैं ऑन द आउटस्टैंडिंग पेमेंट। फिर आते हैं आपकी डी कमीशनिंग एंड रीस्टोरेशन कॉस्ट्स। ये होता है कि जब आपने कोई जैसे कोई लैंड परचेज की है तो उसके ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब आपने 20 साल के एग्रीमेंट है, फिर आपने लैंड को वापस करना है तो उसमें जो डैमेज होगी ना उसको रीस्टोर करके आपने लेना है, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी उसका एस्टिमेट करके हम प्रेजेंट टाइम पीरियड में। इट मीन्स इट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। So it is recognized as a cost of PPE at its present value, which is called discounted value। आपने रिस्टोरेशन करनी है सोच लो आफ्टर 10 ईयर, तो आज हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ PPE में ऐड हो जाएगी। फिर आखिर में जो आपको कुछ इनकम अर्न की है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ PPE वो आपने माइनस कर देनी है। सो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल और फ्रॉम डिमोलिशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ PPE। पुरानी ऐसे कोई डिमोलिश करके हम नहीं बना रहे हैं तो जो उससे इनकम आएगी वो आप माइनस कर लीजिए। एंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन विच आर नॉट रिलेटेड टू PPE। ये तो क्या है आपके कुछ ऑपरेशन से इनकम आ रही है बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू PPE। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम वेकेंट लैंड यूज्ड एज कार पार्किंग व्हाइल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ PPE। आपने लैंड परचेज की है, वहाँ पर आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है तो कुछ टाइम वेटिंग रहती है लैंड, उसको आप यूज़ कर रहे हैं कार पार्किंग, उससे कुछ इनकम आ रही है बट किसी नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो उसको फिर आपने डिडक्ट नहीं करना है। फिर आते हैं आपके कुछ एक्सपेंसिव होते हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन कॉस्ट ऑफ PPE में, ये डायरेक्टली चार्ज हो जाते हैं P&L में। What are those expenses? Number 1, costs of opening a new facility or business. Initial startup costs, getting inauguration costs, costs of introducing a new product or service, including costs of sale, promotion and advertising, cost of new location or a new customer and staff training, administration and general overhead costs। बट यदि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड हैं टू कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE वो आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे। देन कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशंस ऑफ एन एंटिटी, आपने लोकेशन चेंज करनी है एंटिटी की, उसके एक्सपेंसिव कैपिटलाइज नहीं होंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं इनकल्ड व्हाइल डिमांड फॉर आउटपुट बिल्ड्स अप एंड कॉस्ट इनकल्ड व्हेन एन आइटम ऑफ PPE स्टार्ट्स फंक्शनिंग। अब आपकी PPE रेडी हो गई है, उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर लिया है, इवन एक लेस देन 100% कैपेसिटी, इतनी सब ऐसे समझो रेडी यूज है आपकी रेडी, तो हम कहते हैं उसके जो एक्सपेंसिव होंगे वी आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ PPE एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। फिर कोई भी अब नॉर्मल लॉसेज हैं आपके जैसे कि वेस्टेज ऑफ मटीरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज हैं, ये सभी एक्सपेंसिव हम डायरेक्टली P&L में चार्ज करेंगे एंड वी आर नॉट कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ PPE। Next, we have to determine cost of PPE acquired in exchange offer. So, in case of exchange offer, what happens? We give old asset and we get new asset in exchange of that one. Let us see, there are two possibilities. Number 1 is if exchange transaction has commercial substance. Commercial substance means both buyer and seller are involved in business activity or they are interested in business of each other. So in that case again there are two possibilities. If fair value of asset is reliable, अब आपके पास जो आप पैसे एक्वायर कर रहे हैं या जो गिवन अप कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू आपके पास अवेलेबल है एंड
दैट वन इज आल्सो रिलायबल। तो उस केस में आपने जो कॉस्ट ऑफ पीपी क्या लेंगे जो आपने एक्वायर की है, तो रूल इज कॉस्ट ऑफ पीपी इज मेजर या तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, जो एसेट आपको रिसीव हो रही है उसकी फेयर वैल्यू लीजिए, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप विच एवर इज मोर रिलायबल। सेकंड पॉसिबिलिटी है फेयर वैल्यूज कई बार होती हैं दोनों एसेट्स की, बट नो वन इज रिलायबल। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट रिलायबल। So in that case, cost of PPE is measured in following order of preference है। तो आपने इस सीक्वेंस में आपने कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है जो ऐसे आप रिसीव कर रहे हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, सेकंड है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, और ये दोनों ही फेयर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, देन वी विल कहेंगे WDV ऑफ एसेट गिवन अप है। WDV को हम देखें कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आपकी बुक वैल्यू चल रही है। सेकंड पॉसिबिलिटी है इफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है नो कमर्शियल सब्सटेंस है। अब बायर सेलर जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस एक्टिविटी बट वी आर एक्वायरिंग एसेट। इन दिस केस है एसेट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफर इज रिकॉर्डेड एट WDV ऑफ एसेट गिवन। तो जो आप ऐसे दे रहे हैं उसके WDV प्लस आपने कुछ कैश पे किया है माइनस कैश रिसीव्ड, तो ये आपकी कॉस्ट मानी जाएगी जो PPE आपने एक्वायर की है। तो थर्ड आता है फिर आपकी कॉस्ट ऑफ PPE एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन एंटिटी। कई बार होता है कंपनीज एसेट एक्वायर करती हैं और उसके बदले में हम अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रखे हैं विच में भी शेयर और डिवेंचर बट कैश इज नॉट पेड। So in this case, an entity may acquire PPE by issue of its securities, which may be shares or debentures. So in that case, the cost of PPE should be recognized at fair value of asset acquired. तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कंसीडर करनी है यदि आपके पास जो आप फेयर वैल्यू अवेलेबल है जो आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं, इफ़ रिलायबल यदि ये रिलायबल है और एट फेयर वैल्यू सिक्योरिटी से इशूड, अदरवाइज फिर हम लेंगे फेयर वैल्यू सिक्योरिटी जो आपने इशू की है। इट मीन्स जस्ट वी कैन से कॉस्ट ऑफ PPE एक्वायर्ड इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज इशूड विच इज मोर रिलायबल। मोर रिलायबल मीन्स विच इज क्लियरली एविडेंट। तो फोर्थ आता है फिर आपका कॉस्ट ऑफ PPE परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस। कई तरह के हम 2-3 आइटम्स कंबाइंड परचेज करते हैं PPE की और उसका जो प्राइस है वो लमसम में पे करते हैं। उस केस में आता है कि जो टोटल प्राइस है उसको डिफरेंट एसेट्स में कैसे अपोर्शन करेंगे हम। उसका बेसिक रूल है वेयर सेवरल आइटम्स ऑफ PPE आर परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस the consideration is apportioned to various items on basis of their fair values at date of acquisition। तो जो भी टोटल प्राइस आपने पे किया है उसको आप अपोर्शन कर लीजिए, में डिवाइड कर लीजिए इन रेशो ऑफ देयर फेयर वैल्यू से, तो वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी फॉर ईच आइटम ऑफ PPE। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ बियरर प्लांट। तो आपने देखा क्या बियरर प्लांट की हमारी एसेट है, जैसे कोई भी आप प्लांटेशन करते हैं जिसके बेस पर आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसमें आपकी कॉस्ट क्या लेनी है। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन कॉस्ट्स ऑफ ए प्लांट, फॉर एग्जांपल सेटलिंग की कॉस्ट्स हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर, वाटरिंग एक्सेट्रा। जैसे कि मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, अब इसकी लाइफ है 5 या 10 ईयर्स, बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जो भी आपने कल्टीवेशन की एक्सपेंसेस किए हैं वो आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे और वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ बियरर प्लांट। तो 6 पॉइंट आते हैं कॉस्ट ऑफ अनेबलिंग एसेट्स। अनेबलिंग एसेट्स क्या होती हैं जो हमें बेनिफिट देती हैं एंटरप्राइज को। सो अनेबलिंग एसेट्स आर नॉट ओन्ड बाय एंटिटी, बट किसी के आपके पास ओनरशिप नहीं है पर फिर भी आपने एक्सपेंडिचर किया है एसेट के ऊपर और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इट मीन्स अनेबलिंग एसेट्स आर नॉट ओन्ड बाय एंटिटी। फॉर एग्जांपल लिंक रोड टू फैक्ट्री, जैसे आप एक लिंक रोड बनाती हैं हाईवे से लेके अपनी फैक्ट्री तक, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बाकी जो आपकी रोड है उसकी ओनरशिप जो है वो रहती है गवर्नमेंट के पास है, तो उसको हम कहते हैं अनेबलिंग एसेट। इट मीन्स अनेबलिंग एसेट्स आर नॉट ओन्ड बाय एंटिटी, फॉर एग्जांपल लिंक रोड टू फैक्ट्री, बट जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स टू द एंटिटी, पर उसका बेनिफिट मिलेगा। सो दीज कॉस्ट्स आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ PPE। So these assets are available for public use and entity has no control over the asset। पर आप अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इस एसेट को, इसीलिए जो आप फैक्ट्री बना रहे हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं या मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट है उसमें हम ऐड कर देंगे। देन वी हैव सब्सीक्वेंट कॉस्ट ऑफ PPE।
आपने ऐसे एक्वायर कर ली है, कई बार होता है उसके बाद भी आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं अपने पीपीई के ऊपर, जिसका नाम है सब्सीक्वेंट कोस्ट्स। सो दीज कोस्ट्स आर इंकर्ड फॉर फंक्शनिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपीई एज ए फॉलोज। कुछ होते हैं कि ऐसे को आपने रूटीनली फंक्शन में लेकर आना है, उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस हैं, और कोई आपने फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी है। तो देखते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 1 आते हैं इसमें रेगुलर सर्विसिंग कोस्ट्स। So these are costs of day-to-day servicing of PPE, which may include cost of labor, spare parts to maintain present performance of asset. So these costs are recognized as expense in P&L when incurred. तो ये हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो हमने चार्ज करने हैं P&L में। So this is for maintenance of PPE. तो सेकंड टाइप के आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस कोस्ट्स। These are expenses which improve the life और efficiency और कैपेसिटी होगी ऐसे की। तो इससे क्या होता है, ऐसे कि लाइफ इंक्रीज हो रही है या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो इनको फिर हमने करना है कैपिटलाइज एंड एग्रीगेट टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन इनकर। तो जिस साल में आप इनकर करेंगे उस साल में ये हमारे कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जिसको कहते हैं WDV में ऐड हो जाएंगे। तो थर्ड आपको मिलते हैं मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं, स्टैंड बाय और सर्विसिंग इक्विपमेंट हैं। कुछ हमें मेजर स्पेयर पार्ट्स रेडी रखने पड़ते हैं, ऐसे कि जो यूज़ हो सकती हैं, या कुछ स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो रेडी रखते हैं हम। तो इट मीन्स दीज आइटम्स आर यूज रेगुलरली और इरेगुलरली एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए PPE इफ कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड सच आइटम विल प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी। तो इस आइटम के लिए कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं और फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपने रिकॉग्नाइज करने हैं सेपरेट आइटम ऑफ PPE। तो दीज कॉस्ट में भी डेप्रिशिएटेड ओवर इस ओन यूजफुल लाइफ, और इसको फिर आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं जितनी भी इसकी लाइफ है अपनी एज पर कंपोनेंट अप्रोच और ओवर का यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट टू विच दे रिलेट। या तो उनकी अपनी लाइफ होगी तो उसको आगे सेपरेट कंपोनेंट मानेंगे और उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे। अदरवाइज फिर जिस एसेट को बिलोंग करके हैं उसकी जो लाइफ है तो उसी लाइफ में हम इसको राइट ऑफ करके हैं, मीन्स डेप्रिशिएट करके हैं। तो जब हम डेप्रिशिएशन कॉपी करेंगे उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको मिलती हैं मेजर रिपेयर्स हैं और इंस्पेक्शन है और ओवरहॉल है और रीप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। आपने जैसे कोई ऐसे ही परचेज कर लिए, कई बार होता है उसमें मेजर रिपेयर करनी पड़ती है, ओवरहॉलिंग या उसके स्पेयर पार्ट को रीप्लेस करना पड़ता है हमने आफ्टर सम टाइम पीरियड, मे बी 3 ईयर मे बी 5 ईयर। तो उस केस में क्या हो गया कि कॉस्ट टू रिप्लेसमेंट पार्ट और मेजर इंस्पेक्शन ऑफ ओवरहॉल मे बी एस्टिमेटेड ऑन बेसिस ऑफ इट्स एक्चुअल कॉस्ट। उसको आप एस्टिमेट कीजिए इसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो हम ले सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और फेयर वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखिए आपके पास आज प्रेजेंट में नहीं पता है आपको उसकी कितनी कॉस्ट है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी कॉस्ट आएगी उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, एंड शैल बी रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ PPE। तो ये हमारा एक सेपरेट कंपोनेंट माना जाएगा PPE का। अब जैसे सपोज चलो आपने ऐसे परचेज की है, कोई 15 ईयर की लाइफ है, पर आपने उसकी ओवरहॉलिंग करनी है आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो इट मीन्स अब ये जो कंपोनेंट है ओवरहॉल का या जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट पार्ट का, उसकी लाइफ ईयर 5 साल मानी जाएगी, उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे 5 ईयर में। तो जिसे कहा जो कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डेप्रिशिएशन। अभी डेप्रिशिएशन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इट मीन दीज कॉस्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इस यूजफुल लाइफ इंडिपेंडेंटली टुगेदर विद PPE। तो इसको हमने इंडिपेंडेंटली डेप्रिशिएट करना है टुगेदर विद PPE। इट मीन जिसे कहा जो कंपोनेंट अप्रोच टू डेप्रिसिएशन। तो उस केस में देखिए रिवाइज अमाउंट क्या आएगा PPE का, जब आप इसको ओवरहॉलिंग कर रहे हैं या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उस साल में। WDV देखो कितनी है एसेट की, प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट जो आपने एक्वायर किया है या रिप्लेस किया है, माइनस करके WDV ऑफ ओल्ड पार्ट, जो स्पेयर पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हैं उसकी WDV आपने माइनस कर देनी है। तो इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स हैं किस टाइप के होते हैं ये। एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स को आप रिप्लेस कर रहे हैं, वायर्स हैं जो बेल्ट्स होती हैं जो रिप्लेस करनी पड़ती हैं हमें आफ्टर सम टाइम, इंटीरियर वॉल्स हैं बिल्डिंग की एंड रीलाइनिंग ऑफ फर्नेस है। तो इनकी कुछ हमें रिपेयरमेंट करनी पड़ती है या ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है या रिप्लेस करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम पीरियड।
तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर मेजर रिपेयर्स, इंस्पेक्शन ओवरहॉल और replacement of spare parts. So once we have determined the cost of PPE, next we have to discuss what is remeasurement of PPE. So remeasurement means sometimes in future PPE may be revalued to its fair value. It means there are two possibilities. Let us see. So an entity may choose either cost model or revaluation model as its accounting policy and to apply that policy to an entire class of PPE. तो इट मीन्स आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप अपनी पीपीई को वैल्यू कीजिए कॉस्ट के ऊपर ही, या फिर आप उसको रिवैल्यू कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू विच इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मॉडल. सो नंबर वन इज कॉस्ट मॉडल. सो एज पर कॉस्ट मॉडल एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी कैरीड एट इट्स कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेज. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप कॉस्ट पर ही रहने लीजिए अपनी एसेट को, और अब बुक्स में शो करेंगे जितनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है या जो एक्यूमुलेट आपका इम्पेयरमेंट लॉस है वो आपने माइनस कर देना है, बैलेंस आपकी रह जाएगी बुक वैल्यू. तो सेकंड है आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल. सो अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल एन एंटायर क्लास ऑफ पीपीई शैल बी रिवैल्यूड एट फेयर वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ पीपीई. एंटायर क्लास मीन्स जैसे आपके पास 5-6 कंप्यूटर्स हैं, देखिए आप एक कंप्यूटर को रिवैल्यू कर रहे हैं तो आपको सभी कंप्यूटर्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा सेम टाइम के ऊपर. तो किसी क्लास ऑफ पीपीई. तो फेयर वैल्यू में भी मार्केट वैल्यू हो सकती है, और इट कैन बी डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो फ्यूचर में आपको मिलेंगे, और इट में भी डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि जो आपकी WDV है उस टाइम आपकी कितनी रिप्लेसमेंट वैल्यू है, तो उसके बेस पर आप उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकती हैं. द इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीपीई अंडर इवैल्यूएशन मॉडल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अंडर. जब आप रिवैल्यू करेंगे तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से तो डिफरेंस आएगा आपका इंक्रीज और डिक्रीज विच इज गेन और लॉस. तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो नंबर वन है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई. द गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई इज क्रेडिटेड टू P&L अप टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस लॉस. देखिए आपने ऐसे को पहले भी रिवैल्यू कर रखा है और उसमें लॉस हुआ था, वो P&L में चार्ज हो गया था, तो उतना अमाउंट को आप P&L में क्रेडिट कर लीजिए. बट बैलेंस गेन इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व और सरप्लस. देखिए उससे ज़्यादा हो रहा है आपको गेन, या फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसमें गेन आ रहा है तो वो सारा रिजर्व में चला जाएगा. तो आपकी एंट्री बन जाएगी एसेट और पीपी अकाउंट डेबिटेड टू P&L जाएगा आपको प्रीवियस अमाउंट ऑफ लॉस जो डेबिट किया था, और यदि नहीं किया तो सभी अमाउंट आपका चला जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, या हम कहते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में. तो सेकंड है इफ देयर इज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. देखिए आप रिवैल्यू कर चुके हैं ऐसे कोर्स में रिजर्व आया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूटिलाइज कर लीजिए, एंड इफ इट इज अवेलेबल एंड बैलेंस लॉस की चार्ज और डेबिटेड टू P&L. और ये आपने फर्स्ट टाइम ही रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें लॉस है तो आपका P&L में डेबिट हो जाएगा. या सेकंड टाइम कर रहे हैं यदि लॉस ज़्यादा है पुराने रिवैल्यूएशन रिजर्व से तो एक्स्ट्रा लॉस भी आपका डेबिट हो जाएगा P&L में. अब आती हैं इसमें, अब आपके पास रिवैल्यूएशन जो मॉडल अप्लाई करते हैं उसमें भी दो अप्रोच होती हैं. नंबर वन है आपकी ग्रॉस मॉडल, सेकंड होता है नेट मॉडल. ग्रॉस मॉडल में होता है कि जो कॉस्ट है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई मीन्स बोथ आर रीस्टेटेड प्रोपोर्शनेटली टू फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई. सपोज लो अब आपकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई है 40%, तो आपने अपनी जो कॉस्ट है और जो उसकी डेप्रिसिएशन है दोनों को 40% हम इंक्रीज कर देंगे, एंड गेन इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. सेकंड है नेट मॉडल. तो इसमें जो कैरिंग अमाउंट है सिर्फ जो WDV है ऑफ पीपीई इज रीस्टेटेड टू इट्स फेयर वैल्यू. तो इसमें डेप्रिसिएशन को या कॉस्ट को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ WDV को, और जो गेन आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में. नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स क्या हैं रिवैल्यूएशन मॉडल के. नंबर वन है फ्रीक्वेंसी रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन शुड बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एनुअल रिवैल्यूएशन इज मेड इफ आइटम्स ऑफ पीपीई एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू. देखिए आपका बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है फेयर वैल्यू में, फिर आप एनुअल रिवैल्यूएशन कीजिए. सेकंड पॉसिबिलिटी है पीरियोडिकल रिवैल्यूएशन मे बी एवरी 3 to 5 ईयर
एक मेड इफ आइटम्स ऑफ पीपीई रिक्वायर ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजिंग इन फेयर वैल्यू, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है फेयर वैल्यू में, फिर आप 3 से 5 साल में रिवैल्यूएशन कर सकती हैं। तो सेकंड है कि यूटिलाइजेशन कैसे होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का। द बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व शैल बी ट्रांसफर टू जनरल और रेवेन्यू रिजर्व व्हेन एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड मींस सोल्ड और रिटायर्ड फ्रॉम इट्स एक्टिव यूजर। इट मीन्स रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो भी बैलेंस होगा वो हमेशा ही आपने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व में, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली टू इक्विटी। इट मीन्स अगर वो लॉस आ रहा है ट्रांसफर ऑफ एसेट, वो आपका हमेशा ही डेबिट होगा पी&एल में, और जो गेन होगा वो क्रेडिट होगा पी&एल में। सो वी कैन से दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नेवर ट्रांसफर टू पी&एल, वो कभी भी पी&एल में ट्रांसफर नहीं करने हैं, इसलिए ऑलवेज ट्रांसफर टू इक्विटी विच इज थ्रू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। सो थर्ड आता है पॉइंट एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अब आपने देखो एसेट की रिवैल्यू कर ली है, इंक्रीज हो गई एसेट की वैल्यू, तो उससे डेप्रिसिएशन भी आपकी ज़्यादा चार्ज होगी। तो उस केस में आपके पास अनदर पॉसिबिलिटी है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू एक्सेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन, तो जितनी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, तो उतना अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व से मे बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व एवरी ईयर, तो उतना अमाउंट आप हर साल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व में। तो ये पॉलिसी आपको मेंशन करनी पड़ती है कि यदि आप इस पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं इन नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नेक्स्ट जो रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर चेंजिंग इन प्राइस ड्यूटीज और ड्यू कमीशनिंग रीस्टोरेशन कॉस्ट। तो जब आपने एसेट एक्वायर की थी उस टाइम आपने एस्टिमेट किया था प्राइस ड्यूटी या रीस्टोरेशन कॉस्ट का, कई बार वो भी आपकी फ्यूचर में रिवाइज हो जाती हैं, तो उसको कैसे आपने एडजस्ट करना है। The cost of PPE may change in future due to revision in price adjustments or duties or due to changes in initial estimates or removal and restoration costs. These changes are adjusted to PPE as under. तो उनको आपने एडजस्टमेंट करनी है। नंबर 1, इफ़ क्या रिलेटेड एसेट मेजर यूजिंग कोस्ट मॉडल, देखिए आप कोस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, उस केस में चेंज इन लायबिलिटी एडिड टू और डिडक्टेड टू WDV ऑफ एसेट इनका पीरियड ऑफ चेंज है, तो आप WDV में ऐड या लेस कर लीजिए। बट इफ़ डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज ग्रेटर दैन WDV ऑफ एसेट, पर आपकी लाइबिलिटी काफ़ी डिक्रीज हो गई है और वो डिक्रीज जो है आपका WDV से भी ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में जो एक्सेस आएगा ये क्रेडिट को पी&एल, क्योंकि इस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी जो है फॉर डील कॉस्ट टू PPE और जो डिफरेंस रहेगा एक्सेस टू पी&एल, वो पी&एल में क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकंड है इफ़ रिलेटेड एसेट मेजर यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, उस केस में इंक्रीज इन लायबिलिटी के डेबिटेड डायरेक्टली टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड बैलेंस टू PPE। इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो बैलेंस है उसको एडजस्ट कर लीजिए पहले, और बैलेंस जो है फिर आपका PPE में एडजस्ट हो जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व और टू पी&एल इफ़ प्रीवियसली रिवैल्यूएशन लॉस वाज चार्ज टू पी&एल। तो जो डिक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी में मीन्स गेन हो रहा है, तो ये डायरेक्टली क्रेडिट करके रिवैल्यूएशन रिजर्व में या फिर पी&एल में, देखिए पहले आपने लॉस चार्ज किया था पी&एल में। और फर्दर एक्सेस ऑफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी ओवर WDV ऑफ एसेट एज पर कॉस्ट मॉडल, यही पॉइंट है। जब डिक्रीज इन लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज पर WDV ऑफ एसेट अंडर कॉस्ट मॉडल, इट शैल बी क्रेडिटेड टू पी&एल, और वो हमेशा ही आपने पी&एल में क्रेडिट करना है। तो थर्ड है इफ रिलेटेड एसेट है ये रीच द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अब आपका सपोज लो लास्ट ईयर आ गया एसेट का और इसमें कोई लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है, उस केस में ऑल सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज इन पी&एल अंडर बोथ कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल्स। तो जो भी चेंज आएगा वो आपने दोनों मॉडल्स में कॉस्ट या रिवैल्यूएशन में हमेशा ही पी&एल में एडजस्ट करना है, मे बी डेबिट और मे बी क्रेडिट। So next we have to discuss charge of depreciation on PPE. So let us see what is meaning and how to charge depreciation. So depreciation is a measure of loss of asset arising from use, wear and tear, affliction of time or obsolescence of asset. It means when we use asset again and again or its life is over, then there is loss of asset which is called depreciation. So depreciation is a charge on a depreciable asset for a depreciable amount over its useful life. इसमें आप देखेंगे 3 टर्म्स मेन हैं। डेप्रिशिएशन हम चार्ज करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, मीन्स जो एसेट्स आपकी डेप्रिशिएट होती हैं फॉर डेप्रिशिएबल अमाउंट, और कितना अमाउंट है जिसको अपने चार्ज करना है डेप्रिशिएशन,
ओवर इस यूजफुल लाइफ। तो नंबर 1 है इसमें what is depreciable asset। So depreciable assets are those assets which are expected to be used for more than 1 year and have a limited useful life। तो जिनकी लाइफ लिमिटेड है, मे बी 5 ईयर 10 ईयर, दे आर depreciable assets। So land is not a depreciable asset because it has infinite life and no depreciation is charged on land। जैसे लैंड और बिल्डिंग्स होती हैं तो लैंड पर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगी, बट वी चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग्स। सो वट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ, जिसके ऊपर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है। सो डेप्रीशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एसेट और द वैल्यूड अमाउंट लेस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू एट एंड ऑफ इट्स लाइफ। इट मीन कॉस्ट या वैल्यू अमाउंट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर लीजिए, वो आपका आ जाएगा डेप्रीशिएबल अमाउंट, जिसको आपने डेप्रीशिएट करना है ओवर इज यूजफुल लाइफ। एंड व्हाट इज यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मे बी पीरियड्स ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। पीरियड्स होते हैं नॉर्मली मंथ्स हैं या ईयर्स में चलते हैं, तो जितने टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट, या फिर कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस होकर मिलेंगे उस एसेट से, तो उसके बेस पर भी आप डेप्रीशिएशन को चार्ज कर सकते हैं, वो भी उसकी लाइफ काउंट होती है। फिर आता है कि डेप्रीशिएबल अमाउंट हमने देखा था कि कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस रेजिडुअल वैल्यू? Residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of asset। तो आज की डेट में हमें कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सो दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। तो अब देखते हैं रेलिवेंट पॉइंट्स क्या हैं डेप्रीशिएशन के। नंबर 1 आता है कि मेथड क्या होगा आपका टू चार्ज डेप्रीशिएशन। So depreciation on an asset is charged by a method which reflects the pattern in which the future economic benefits of the asset are expected to be consumed by the entity। मतलब किस रेशो में आपको बेनिफिट मिलेगा उस एसेट को यूज करने से फ्यूचर में, तो उसके बेस पर हमने डेप्रीशिएशन का मेथड अप्लाई करना है। तो इट मीन्स फॉलोइंग आर द मेजर मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन एन एसेट। बेसिकली आपके बेनिफिट्स इक्वल हैं, देन वी अप्लाई नंबर 1 मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। तो इस रिजल्ट से कॉन्स्टेंट डेप्रीशिएशन चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। देखिए आपको लगता है कि एसेट को यूज करने से बेनिफिट हमारा सेम रहेगा हर साल, तो आप SLM अप्लाई कीजिए। वैसे भी जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही अप्लाई करते हैं, तो उसमें डेप्रीशिएशन आ जाएगी पर एनम कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सेकंड है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस और WDB मेथड। ये हो क्या कि जब आपको लगता है कि आपके एसेट का जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे फ्यूचर में कम होते जाएंगे, फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस अप्लाई करते हैं। एक रिजल्ट से डिक्रीजिंग डेप्रीशिएशन चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगी पर एनम। ओपनिंग WDB देखो कितनी है एसेट की ईच ईयर हर साल। WDB होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इनटू रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, उसके ऊपर आप अप्लाई कर लीजिए। तो थर्ड केस आता है आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और यूजेज मेथड। तो इस रिजल्ट से चार्ज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज और बेनिफिट्स और यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो आपको एसेट को यूज करने से बेनिफिट क्या मिल रहा है? बेनिफिट नॉर्मली होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसकी रेशो बना लीजिए, उस रेशो में आपको डेप्रीशिएबल अमाउंट जो है एसेट का वो हम राइट ऑफ करके जाएंगे, जैसे कॉल्ड डेप्रीशिएशन चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। फिर आता है कि आप डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के लिए डिफरेंट मेथड की यूज कर सकती हैं। इट मीन डिफरेंट डेप्रीशिएशन मेथड्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स एंड एंटिटी में गो टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर डिफरेंट एसेट्स ऑफ सेम क्लास इफ एसेट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। देखिए आपकी एसेट्स डिफरेंट पर्पज में यूज हो रही हैं या डिफरेंट लोकेशन में है और उसका पर्पज आपका डिफरेंट है, फिर आप डिफरेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इवन गो दे आर ऑफ सेम क्लास ऑफ एसेट। For example, depreciation on motor vehicles may be charged as under depreciation may be charged as per SLM if motor vehicles are used for normal business purpose. Second, depreciation may be charged as per WDB if motor vehicles are used for hiring as a taxi। तो जब टैक्सी में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेप्रीशिएशन ज़्यादा होती है, तो आप WDB मेथड अप्लाई कर सकती हैं। नॉर्मल बिजनेस में है तो आप SLM मेथड अप्लाई कर सकती है। सेकंड आता है कि अब ट्रीटमेंट क्या होगा डेप्रीशिएशन का हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
So depreciation of an asset begins when asset is available for you, directly ready to use. तो डेप्रिसिएशन आपने उस टाइम से स्टार्ट करनी है जब वो अवेलेबल होगी एसेट आपके लिए, ये हम कहते हैं रेडी टू यूज है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड इज रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन P&L। नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि वो हमारा एक्सपेंस माना जाएगा P&L में। सो अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट, जब तक आप उसको किसी दूसरी एसेट में यूज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज पर एज टू डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मशीनरी बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री। अब जैसे प्लांट में मशीनरी यूज हो रही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो फैक्ट्री ओवरहेड है और जो हम चार्ज करके हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में एज पर एज टू। Similarly, as per AS 26, depreciation of PPE used for development activity shall be included in cost of intangible asset which is recognized। जब आप कोई इंटेंजिबल एसेट को डेवलप कर रहे हैं, उसमें कोई आपकी एसेट यूज हो रही है, उसकी डेप्रिसिएशन आपकी उस कॉस्ट में जो है कैपिटलाइज हो जाएगी, विच बिकम्स कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फिर आता है नंबर 3 पॉइंट है कि चेंज कैसे होगा डेप्रिसिएशन में। चेंज कब आता है? हर साल में। तो डेप्रिसिएशन में चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन वैल्यू ड्यू टू रिवैल्यूएशन। आपने एसेट की वैल्यू को चेंज कर दिया है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है आपका, तब आपको उस साल से डेप्रिसिएशन भी चेंज करनी है। द चेंज इन डेप्रिसिएशन वुड बी कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS 5 एंड रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम ईयर ऑफ चेंज। और आपकी डेप्रिसिएशन चेंज होगी जिस साल में आपका कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है या सभी फैक्टर आपके चेंज हो रहे हैं। फिर एक आता है इसमें कंपोनेंट अप्रोच टू डेप्रिसिएशन। कई बार क्या जो PPE है उसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं आपकी एसेट में, पर उनकी अलग अलग लाइफ है, तो उस केस में आपने हर कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है और सबको डेप्रिसिएशन ऐड करके वो बन जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन। इट मीन्स ईच मेजर पार्ट और आइटम ऑफ PPE विच इज कॉल्ड कंपोनेंट with a significant cost and different useful life, it is depreciated separately over its own useful life. For example, an entity may depreciate separately the airframe, engine and interiors of an aircraft. तो एयरक्राफ्ट में देखो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, उसका फ्रेम है, इंजन है और जो उसकी इंटीरियर है। सभी की लाइफ जो है डिफरेंट हो सकती है, तो उसको जो भी कॉस्ट आएगी तीनों कंपोनेंट की, उसको उनकी लाइफ में आप डेप्रिशिएट कर लीजिए। तो जिसे कहा कि कंपोनेंट अप्रोच टू डेप्रिसिएशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है आपने? इट मीन्स नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट इन फ्लोइंग केसेज है। एक तो नंबर 1 नॉर्मल केस है, एसेट आपकी डी रिकॉग्नाइज हो गई है, जैसे कि PPE हैज बीन ट्रांसफर्ड, आपने एसेट की सेल कर दी है, तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी उस साल से। सेकंड पॉसिबिलिटी है एसेट की रिटायर्ड फ्रॉम इट्स एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल और सेल। एसेट का यूज खत्म हो गया है, उसको रिटायर कर दिया है, अब उसको आपने रख लिया है सेल के लिए, तो इट मीन्स फिर उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी आती है, कई बार दिया होता है आपको, हाउएवर डेप्रिसिएशन डज नॉट सीज व्हेन द एसेट बिकम्स आइडल और इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज बट नॉट हेल्ड फॉर सेल। आपने रिटायर को कर दिया है पर अभी आपने उसको सेल पे नहीं लगाया है, सेल नहीं करनी है आपने, फिर आपको डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करनी पड़ेगी। थर्ड पॉसिबिलिटी है, हमने देखा कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट की कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, पर कई बार होता है कि यदि रेजिडुअल वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और बुक वैल्यू और WDV, फिर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है। नेक्स्ट भी है कोई डी रिकॉग्निशन ऑफ PPE। डी रिकॉग्निशन मीन्स आपने एसेट को ट्रांसफ़र कर लिया है या सेल कर लिया है या उसका यूज आपने चेंज कर लिया है, तो उस केस में हमने उसको बुक से एलिमिनेट करना है या बुक्स में आपने किस तरीके से वैल्यू करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे डी रिकॉग्निशन में। तो इट मीन्स वी कैन से द कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE इज डी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज है। तो ये कि आपने एसेट को ट्रांसफ़र कर लिया है, इसका मतलब है कि अब उससे फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलिवेंट फॉर डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। नंबर 1 नॉर्मल केस है ट्रांसफ़र ऑफ PPE। सो एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट हैज़ बीन सोल्ड और डोनेटेड और ट्रांसफर्ड बाय फाइनेंस लीज।
फाइनेंस लीज होता है कि हम ऐसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं और उसकी अमाउंट जो रिसीव करके है वो इंस्टॉलमेंट में आपको रिसीव होता है। और इन जिस केस जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? So loss on transfer of asset is debited to revaluation surplus if it is available and balance to P&L। देखिए आपने एसेट को पहले रिवैल्यू किया था, उसका रिवैल्यूशन रिजर्व है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, और यदि वो कम रह जाता है तो बैलेंस फिर आपने P&L में चार्ज कर देना है। तो गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू P&L, और एक गेन हो रहा है वो डायरेक्टली P&L में क्रेडिट होगा। और यदि आपने उसको रिवैल्यू किया था पहले तो उस केस में जो बैलेंस है रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए जनरल रिजर्व में, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली टू इक्विटी। तो ये इक्विटी फंड बन जाएगा। इट मीन्स रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो भी बैलेंस होता है वो कभी भी P&L में नहीं जाएगा, वो हमेशा ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। So however, the compensation from third parties for items of PPE that were impaired, lost or given up should be credited to P&L when the compensation becomes recoverable। तो कई बार होता है कि आपकी ऐसे डिस्ट्रॉय हो गई है और उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, विच इज आगे थर्ड पार्टी या कोई और दूसरा पर्सन आपको क्लेम दे रहा है, वो फिर आपकी इनकम मानी जाएगी और वो P&L में क्रेडिट हो जाएगी। So further AS19 is applicable। AS19 डील करके है लीजिंग ट्रांजैक्शन से। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में AS19 में। इतनी जब सेल करते हैं और उसको लीज पे हम वापस ले लेते हैं तो वो हमारा AS19 में कवर हो जाता है। सो दिस इज नॉट कवर्ड बाय AS10। तो सेकंड केस आपको मिलेगा डील कोऑर्डिनेशन में PPE एज इन्वेंट्री। कई बार होता है आपकी एसेट जो थी वो हमने एज स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया है, उसको हम कहते हैं PPE एज इन्वेंट्री। इट मीन्स व्हेन एन आइटम ऑफ PPE इज हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। पहले आपने PPE की जो आइटम थी वो रखी हुई थी आपने फॉर रेंटल, जिससे आपको रेंटल इनकम आ रही थी। इट मीन्स वो आपकी एसेट थी, बट नाउ इट इज हेल्ड फॉर सेल। पर अब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है फॉर सेल पर्पज़ के लिए। मीन्स आप एसेट को कभी भी सेल कर सकते हैं। देन सच एसेट की क्लासीफाइड है कि इन्वेंट्री एट इट्स कैरिंग अमाउंट। तो जो भी उसकी बुक वैल्यू है तो वो अब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मानी जाएगी। अब उसको हम स्टॉक मान लेंगे अपनी बुक्स में। एंड सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सच एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज एज सेल रेवेन्यू एज पर AS9। कोई इन्वेंट्री को जब आप सेल करते हैं तो वो फिर आपका सेल रेवेन्यू माना जाएगा, और रेवेन्यू जो है वो हमारा कवर होता है AS9 में। तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे AS9 में। तो थर्ड आपकी पॉसिबिलिटी आती है डील कोऑर्डिनेशन की, PPE रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। अब एसेट आपकी वेस्ट हो गई है, उसका कोई यूज नहीं रहा है, उसको हमने रिटायर कर लिया है और उसको हमने सेल पर लगा दिया है, उसको कहते हैं हेल्ड फॉर डिस्पोजल और हेल्ड फॉर सेल। So in this case, an asset is retired from its active use and held for sale is valued at lower of book value, which is called WDV or net realizable value। तो उस केस में इस एसेट को आपने वैल्यू करने हैं लोअर ऑफ WDV और NRV, एंड एनी लॉस इज चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड बैलेंस टू P&L। और यदि लॉस हो रहा है तो पहले वो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ इट इज अवेलेबल, अदरवाइज वो आपका सारा P&L में चार्ज हो जाएगा। और इस केस में अब फ्यूचर में कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगी। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू ऑन सच एसेट। इट मीन जब भी आपकी एसेट रिटायर हो गई है एंड हेल्ड फॉर सेल, उस केस में रूल अप्लाई होता है कि कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हम डेप्रिसिएशन पॉइंट कंसीडर कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है अब AS10 में डिस्क्लोजर क्या क्या लेना है अपने इन नोट्स अकाउंट्स में फॉर PPE। डिस्क्लोजर होता है जो हम अपनी बैलेंस शीट के नीचे बनाते हैं नोट्स अकाउंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट और PPE। तो अपने 3 तरह के डिस्क्लोजर लेने हैं, जनरल, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और एडिशनल। जनरल में आते हैं उनकी ग्रोथ एंड नेट बुक वैल्यूज़ क्या हैं एसेट्स की एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, शोइंग एडिशंस, डिस्पोजल्स, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। तो आपने ओपनिंग बैलेंस शो करना है, उसमें शो करनी है कितनी परचेज हो रही है, लेस करनी है कोई सेल हो रही है, ऐड करनी है कोई रिवैल्यूएशन या गेन या लॉस है, लॉस होता है इम्पेयरमेंट, और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो भी आपने शो करनी है। तो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का आपने सारा
डाटा शो करना है। एक्सपेंडिचर कोई किया है आपने इनकम कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट ड्यूरिंग करंट पीरियड में, वो भी आपने डिस्क्लोजर में शो करना है। सेकंड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर है। रिवैल्यू अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर द एसेट्स, देखिए आपने एसेट को रिवैल्यू किया है तो उसका कितना अमाउंट है, एंड मेथड कौन सा एडॉप्ट किया है आपने टू कंप्यूट रिवैल्यू अमाउंट्स। मेथड के हमारे मार्केट प्राइस लिया है आपने, या कोई इनकम अप्रोच, या कोई प्रेजेंट वैल्यू लिया डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, एंड चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो जब आपको कोई गेन या लॉस होता है उसमें जो चेंज आ रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। फिर आते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर। वी हैव टू शो कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडल पीपीई, ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई फुली डेप्रिशिएटेड बट स्टिल इन यूज। कई भरोसा है ऐसे काफ़ी फुली डेप्रिशिएट हो गई है पर वो हम अभी भी यूज में कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उसका आपने शो करना है वट इज ग्रोस कैरिंग अमाउंट। एंड देन कैरिंग अमाउंट मीन्स WDV ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई व्हेन कॉस्ट मोबिलिटी यूज। तो हमने किया था हम ऐसे कोई वैल्यू कर सकते हैं कॉस्ट के ऊपर, देखिए आप कॉस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है वो फिर आपने नोट्स में डिस्क्लोज करनी है। So now let us discuss one example to explain all concepts of ASA 10। तो ये एग्जाम्पल मैंने स्टडी मटीरियल का ही सेम क्वेश्चन लिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी कॉन्सेप्ट्स हमारे देखो क्लियर हो जाएंगे। रिकॉग्निशन कैसे करनी है पीपीई की एट कॉस्ट, और कंपनी अप्रोच अप्लाई हो रही है डेप्रिसिएशन की, रिवैल्यूएशन भी हो रही है पीपीई की, और फाइनली इसकी सेल भी हो रही है। तो सभी पॉइंट्स आपको इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। तो लेट अस सी डाटा गिवन इन दिस एग्जाम्पल। So Akshar Limited installed a new plant which is not a qualifying asset at its production facility and incurred the following costs। Expenses आपको दिए हैं for installation of plant, cost of plant as per supplier invoice, initial delivery and handling costs, cost of site preparation, consultant fees for advice on acquisition of plant, interest charges paid to supplier against deferred credit। एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कोस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये एस्टीमेटेड कॉस्ट है आफ्टर 10 ईयर 50,000 बट इट्स प्रेजेंट वैल्यू गिवन ₹30,000। यानी कि ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन 40,000। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, अमाउंट्स दिए हैं आपको रुपीज़ में। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड मोटर से इंस्टॉल इन द प्लांट एज ए सेपरेट कंपोनेंट। अब जो हम प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें एक मोटर्स हैं हमारी, उसको हमने एक सेपरेट कंपोनेंट माना है एट ए कॉस्ट ₹5 लाख विच इज परचेज प्राइस। अब उसका परचेज प्राइस है 5 लाख। अब देखिए टोटल कॉस्ट दी है प्लांट की एक्चुअल सप्लायर इनवॉइस जिस 30 लाख से, तो इट मीन्स 30 लाख में से 5 लाख होगी मोटर की कॉस्ट, बैलेंस आपकी मानी जाएगी अगर प्लांट है एक्सक्लूडिंग मोटर से विच विल बी 30 लाख माइनस 5 लाख, इट विल बिकम 25 lakhs। सो एंड अदर कोस्ट वर एलोकेटेड टू देम प्रपोर्शनेटली। जो बाकी एक्सपेंसेज हैं वो फिर हमने दोनों कंपोनेंट्स में, एक तरीके से दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया मोटर्स और एक हो गया आपका अदर प्लांट। तो जो रिमेनिंग एक्सपेंसेज है वो आपने इनकी रेशो में अपोर्शन करने हैं। The company estimates the useful life of the plant and that of motors as a 10 year and 6 year। और इनकी लाइफ हमने एस्टिमेट की है, प्लांट की 10 ईयर्स है, मोटर की 6 ईयर है रिस्पेक्टिवली, एंड स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज यूज्ड। फर्दर आपको दिया है एट एंड ऑफ 4th ईयर कंपनी रिप्लेसिंग मोटर्स इंस्टॉल्ड इन अ प्लांट एट ए कॉस्ट ₹6 लाख। तो 4th ईयर के एंड में हमने मोटर को रिप्लेस कर लिया है, उसकी वैल्यू है 6 लाख, एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू मोटर इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर। और इसकी अब लाइफ भी हमने रिवाइज कर दी है। पहले देखो टोटल लाइफ हमने दी थी 6 ईयर, 6 में से 4 ईयर की लाइफ हमारी ओवर हो गई है जब रिप्लेस कर रहे हैं, रिमेनिंग रहेगी 2 ईयर्स, बट नाउ लाइफ ऑफ मोटर इज रिवाइज टू 5 ईयर। Also the whole plant is revalued at ₹25 lakh at end of 4th year। और जो होल प्लांट है उसको भी हमने रिवैल्यू कर दिया है 25 लाख। इट मीन्स 25 लाख हमारे पूरे प्लांट की फेयर वैल्यू है। इसमें से 6 लाख आपकी समझो मोटर की वैल्यू है उस टाइम, तो बैलेंस पर आ जाएगी 19 लाख, वो आ जाएगी अगर प्लांट की फेयर वैल्यू। So at end of 8th year, company disposed the plant as a whole, including motors, for ₹6 lakh।
अब 8th ईयर के एंड में हमने होल प्लांट को सेल कर लिया है, डिस्पोज ऑफ कर लिया है। सो देयर इज नो चेंज इन डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन लायबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। जो आपकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट हैं वो हमारी सेम ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आपको डिफरेंट आंसर्स देने हैं। नंबर 1, वट एक्सपेंसेज वुड नॉट बी कैपिटलाइज एज कॉस्ट ऑफ एसेट, कौन से एक्सपेंसेज हैं वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे हम। सेकंड, वट इज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई रिकॉग्नाइज एज मोटर्स एंड प्लांट एक्सक्लूडिंग मोटर, कितनी कॉस्ट आएगी आपकी मोटर की और अगर प्लांट की। एंड वट इज कैरिंग अमाउंट मीन्स WDV ऑफ पीपीई एट एंड ऑफ 4th ईयर, 4th ईयर के में WDV कितनी है। एंड वट विल बी रिवाइज एप्लीकेशन फॉर 5th ईयर आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू मोटर एंड रिवैल्यूएशन ऑफ अदर प्लांट, फिर 5th ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आफ्टर रिवैल्यूएशन। एंड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी ट्रांसफर टू P&L और जनरल रिजर्व एंड ऑफ 8th ईयर व्हेन प्लांट हैज बीन सोल्ड। फिर आपने देखना है 8th ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है जब प्लांट आपका सेल हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा था कौन से एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटलाइज नहीं करने हैं हमें। तो इट मीन्स नंबर 1 is expenses not to be capitalized at cost of asset। तो इसमें नंबर 1 आएगा इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख विच इज पेड टू सप्लायर इज नॉट कैपिटलाइज बिकॉज इट इज गिवन क्या है एसेट इज नॉट क्वालिफाइंग एसेट। तो एक हमारा बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है AS16, उसमें होता है क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन होती है विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड टू गेट रेडी टू यूज। कुछ केस में कह रहे हैं कि वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसका मतलब है कि जो प्लांट हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो रेडी टू यूज है, तो इट मीन इसलिए उसका इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो जब हमारी एसेट रेडी टू यूज होती है उसके बाद का जो इंटरेस्ट होता है वो हम P&L में चार्ज करते हैं। तो सिंस इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट सो इंटरेस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज। और सेकंड आता है ऑपरेटिंग लॉसेज ऑफ ₹40,000 विच आर इनकर्ड बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हेंस दीज आर आल्सो नॉट कैपिटलाइज्ड। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दीज कॉस्ट आर एक्सपेंस टू P&L एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड। फिर आप देखिए सेकंड और थर्ड पार्ट में पूछा है बचा इज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई एंड WDV कितनी है पीपीई की एट एंड ऑफ 4th ईयर। अब कैलकुलेट करते हैं वट इज कॉस्ट ऑफ पीपीई एंड WDV एट एंड ऑफ 4th ईयर। तो पहले मैंने कैलकुलेट किया टोटल कॉस्ट कितनी है प्लांट की, कॉस्ट इनकल हमें दिए हैं, उसमें देखो कौन कौन सी कैपिटलाइज होंगी आपकी। कॉस्ट ऑफ प्लांट एज पर सप्लायर इनवॉइस ₹30 लाख से ये हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ये भी हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 2 लाख, देन कंसल्टेंट फीस फॉर एडवाइस एंड एक्विजिशन ऑफ प्लांट ये भी कैपिटलाइज हो जाएगी। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट से जो आपने 10 साल के बाद करनी है उसकी आज वैल्यू कितनी है वो हमें ली है 30,000। तो इसमें दो एक्सपेंसेस नहीं लिए मैंने, इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग लॉसेज विच विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। तो इस तरीके से आपके पास आ रही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग मोटर्स ₹33,80,000। अब इसको डिवाइड करके हैं, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो वट इज कॉस्ट एंड WDV ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट। तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया है। तो एक मोटर का कॉलम बना लिया हमने, एक है प्लांट एक्सक्लूडिंग मोटर। तो आप देखिए सबसे पहले तो हमें दिया उनकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मोटर की है 6 ईयर और प्लांट की है 10 ईयर्स। अब इसकी रेशो बनाओ, प्रपोर्शन क्या बनेगा कॉस्ट का। हमें सिर्फ परचेज प्राइस दिया है, मोटर का है आप देखो 5 लाख और प्लांट का टोटल वैल्यू थी परचेज प्राइस 30 माइनस 5 रह गई आपकी 25 लाख। उसकी रेशो बन गई 5:25 मीन्स 1/6 × 5/6। ये इनका प्रपोर्शन बन गया है। अब ये टोटल कॉस्ट है प्लांट एज ए होल उसको आप अपोर्शन कर लीजिए इस रेशो में 1:5 में। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट की कमिंग 33,80,000 इंटू 1:5। इट मीन्स टोटल बन गया 6। तो ये बन जाएगी 160, 563, 333। कॉस्ट आ गई मोटर की, प्लांट की आ जाएगी 28,16,667। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं WDV। तो उसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। हमने WDV कैलकुलेट करनी है 4th ईयर के एंड में, तो लेस कर रखे हैं डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर से। तो 563, 333 इसकी लाइफ है 6 ईयर, तो इसकी 4 साल की डेप्रिसिएशन आएगी इंटू 4/6। 6 से डिवाइड कीजिए वो पर एनम बन जाएगी, इंटू 4 कर लीजिए 4 साल की आ गई 375,555। अब जो प्लांट है उसकी कॉस्ट है 28,16,667। इसकी लाइफ है 10 ईयर से, डिवाइड कीजिए 10 से इंटू कर लीजिए 4 से, तो ये 4 साल की डेप्रिसिएशन आ गई 11,26,667 है।
तो ये माइनस कर दीजिए, कॉस्ट में से बैलेंस रह गया आपकी कैरिंग अमाउंट विच इज आल्सो कॉल्ड WDV एट एंड ऑफ 4th ईयर, दिस इज 187,778 एंड 16,90,000। फिर आपको एक 4th पॉइंट में पूछा है व्हाट विल बी रिवाइज्ड एप्लीकेशन फॉर 5th ईयर आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू मोटर एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। तो आप इसका कैलकुलेशन करके हैं रिवाइज एप्लीकेशन फॉर 5th ईयर। तो 2 कॉलम बनाए हैं मैंने, मोटर्स हैं और एक है प्लांट एक्सक्लूडिंग मोटर्स है। तो हमने WDV देखो कैलकुलेट कर लिया है एट एंड ऑफ 4th ईयर, वो आ गई आपकी 187,778 एंड 16,90,000 में। अब पहले डिस्कस करते हैं मोटर के बारे में। मोटर को हमने रिप्लेस कर दिया है, तो जो इसकी WDV है उसको तो आप कैंसिल कर दो बुक से, डी रिकॉग्नाइज कर दो, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी और WDV टू PNL में, और उसमें ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू मोटर विच इज गिवन 6 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स अब ये वैल्यू आ गई, इसकी जो कॉस्ट आ गई अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर में आ गई या एंड ऑफ 4th ईयर में रुपीज़ 6 लाख है। अब आपने जो रिमेनिंग प्लांट है उसको रिवैल्यू किया है, उसमें देखो कितना गेन हो रहा है, उसकी WDV है 16,90,000। अब इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फेयर वैल्यू देखो टोटल हमें की है 25 लाख, जिसमें से हम मोटर की फेयर वैल्यू एज्यूम करेंगे 6 लाख जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जिस एट द सेम टाइम एंड ऑफ 4th ईयर। तो इट मीन्स अब वो ऐड हो जाएगा रिवैल्यूएशन गेन विच विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो कितनी उसकी फेयर वैल्यू है 25 लाख टोटल की है, माइनस 6 लाख लेस कर दो आपको मोटर की फेयर वैल्यू, बैलेंस है कि 19 लाख है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा 19 लाख माइनस 16,90,000, तो उसकी WDV है, डिफरेंस आपका गेन आ गया 2,10,000, वो ऐड कर दो इसमें। अगर प्लांट में रिवैल्यूएशन अपवाद हो रही है आपकी, तो इट मीन्स अब रिवैल्यू अमाउंट आ गया आपका कि बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर में 19 लाख से। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर। अब जो मोटर की रिमेनिंग लाइफ आपको दी है वो है 6 ईयर, उसकी डेप्रिसिएशन बनेगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर। और जो रिमेनिंग प्लांट है उसकी टोटल लाइफ की आपकी 10 ईयर्स माइनस कर दो, 4 ईयर्स उससे एक्सपायर हो गए हैं, रिमेनिंग लाइफ रह गई है उसकी 6 ईयर, तो उसकी डेप्रिसिएशन आएगी 19 लाख डिवाइडेड बाय 6 ईयर। तो जिसे कमिंग 1,20,000 मोटर की डेप्रिसिएशन आ गई और प्लांट की आ गई 316,667। So next we have 5th part. In this they are asking what will be amount of profit or loss to be transferred to PNL or general reserve at end of 8th year when plant has been sold. तो इसमें देखिए अब हमने कैलकुलेशन की है गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ 8th ईयर। 2 कॉलम्स हैं, मोटर है, प्लांट एक्सक्लूडिंग मोटर है, और एक आप बना लीजिए प्लांट एज ए होल। तो अभी हमने कैलकुलेट की थी बची की कॉस्ट और रिवैल्यू अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर है, सो ये हमने सेम ले ली है, जिससे 6 लाख एंड 19 लाख टोटल बन जाएगा 6 + 19 लाख इक्वल टू 25 लाख फॉर प्लांट एज ए होल है। अब हमने 8th ईयर के एंड में सेल की है, तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इसके ऊपर 5th, 6th, 7th, 8th 4 साल की, तो वो लेस करके हैं पहले डेप्रिसिएशन फॉर ईयर से 5 to 8 है। डेप्रिसिएशन देखो 5th ईयर की 120 सेम रहेगी आने वाले सालों में, तो ये बन गई 4 साल की 120 × 4,80,000 होगी मोटर की, और प्लांट की क्या 316,667 इंटू कर दीजिए 4, ये बन गई 1266,668। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर होल प्लांट जिस इज 1746,668। तो बैलेंस रहेगी आपकी WDV बिफोर सेल ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ 8th ईयर, जिस इज 753,332। अब इसको आपने सेल कर दिया है, लेस कर दीजिए सेल प्रोसीड्स ऑफ होल प्लांट रुपीज 6 लाख, बैलेंस आपका लॉस आ जाएगा, जिससे ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट विच विल बी डेबिटेड टू PNL 153,332 and balance or revaluation reserve which is also got surplus, it shall be transferred to general reserve directly to equity which was ₹2,10,000। मैंने आपको अब 4 प्रॉब्लम प्रोवाइड किए हैं PDF में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस 4 प्रॉब्लम में हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, जो आपके स्टडी मटीरियल के एग्जांपल्स हैं, स्टडी मटीरियल के क्वेश्चन हैं, CA के पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन इशू किए हैं इंस्टीट्यूट ने, और जितने भी केस सिनेरियो हमने इशू किए हैं इंस्टीट्यूट ने, वो सभी इन 4 प्रॉब्लम से मैंने कवर कर दिए हैं। देखिए आप इन 4 प्रॉब्लम्स को ध्यान से कर लेते हैं तो समझो आपका AS कैंट जो है फुली कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, फिर आप वहाँ से अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं।